A very good morning to all my dear students. As you know, beta, yesterday we have completed our exercise 12.3. In this exercise, we will studied about how to estimate the money, how to estimate, how to find the estimated difference, and how you will round off to nearest 100 rupee, nearest 1000 rupee, right? So this we have done yesterday. Now today what we do? Today we will study a new topic which is unitary method. About this topic I already taught, but so unitary method, this is the type of method in which you know about the cost of many items and you have to find the cost of few more items, right? So for that what you will do, फर्स्टली आप वन आइटम की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, देन यू विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फ्यू थिंग्स, राइट, विच इज़ फर्स्टली यू विल डिवाइड एंड सेकेंड यू विल मल्टीप्लाई. फर्स्टली सी द एग्जाम्पल. This is given here, page number 204. Two books cost rupees 200. Right? Cost of two books is rupees 200. Find the cost of 7 such books. Find the cost of 7 such books. So see beta, in this the cost of 2 books already given and they are saying find the cost of 7 books. Right? So firstly what I done? Firstly we will find the cost of one book by dividing the amount by the number of items. After that the cost of 7 books by multiply. Right? This unitary method you have done in 4th class also. So let's we start our exercise 12.4. In this exercise 12.4, the first question is the cost of 3 meters of a particular quality of cloth is rupees 1200. So what is the cost of 24 meter of cloth of the same type? So देखो फर्स्टली इन्होंने जो कॉस्ट गिवन है बेटा वो 3 मीटर की है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम 1 मीटर की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 24 मीटर बाय मल्टीप्लाइंग. राइट? सो नाउ हाउ यू विल राइट दिस क्वेश्चन नंबर first. So you will write cost of 3 meter cloth. 3 meter cloth, that is equals to rupees 1200. Now what we do beta, हम find करेंगे cost of 1 meter cloth. Right? So 1 meter, 3 to 1, many to more. So 1200 divide by 3. Right? So when you divide this 1200 by 3, 3 fours are 12, 2 zeros, then these zeros come here as it is. So what come here? रुपीज़ 400. राइट? 1 मीटर क्लॉथ की जो आपकी कॉस्ट है वो कितनी है बच्चे? रुपीज़ 400. नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 मीटर क्लॉथ. कॉस्ट ऑफ 24 मीटर क्लॉथ. राइट? सो यहाँ पे देखो, आप फर्स्ट लाइन को भूल जाओ, सॉरी सेकंड लाइन से चलो. फर्स्ट मीटर टू 24, 1 टू मैनी. सो व्हाट वी विल डू, रुपीज़ 400 मल्टीप्लाई बाय 24. राइट? रुपीज़ 400 मल्टीप्लाई बाय 24. नाउ मल्टीप्लाई.
4 multiply with 0, 0, 4 multiply with 0, 0, 4 4s are 16, cross 2 multiply with 0, 0, again with 0, 2 4s are 8, 0 0 6, 8 plus 1 9, rupees 9600. क्लियर? इस टाइप से क्वेश्चंस को करना, इसको हम बोलते हैं बच्चे यूनिटरी मेथड. व्हाट वी कॉल दिस? यूनिटरी मेथड. जहाँ पे आपको फ्यू थिंग्स की कॉस्ट गिवन हो, कॉस्ट, प्राइस, एनीथिंग. स्टार्टिंग में फ्यू थिंग्स के बारे में पता हो आपको, फिर आप उसको 1 से फाइंड आउट करो एंड देन अगेन यू विल फाइंड द कॉस्ट और प्राइस ऑफ फ्यू थिंग्स, राइट? सो दिस कंप्लीट प्रोसीजर जहाँ पे हम फर्स्टली डिवाइड करके 1 की क्वांटिटी और कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करके फ्यू थिंग्स की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, वहाँ कौन सा मेथड है? वो आपका यूनिटरी मेथड. क्लियर? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, a dealer sold 20 cycles for rupees 40,400, right? How many cycles will a customer be able to buy for rupees 24,240? So now it is given to you that rupees 4,400 cost of 20 cycles, right? So now we will find the one and after that थोड़ा सा इसमें जो बेटा है अपोजिट गिवन है. देखो यहाँ पे जो अमाउंट गिवन है ये 20 साइकिल्स का है और हमें फाइंड आउट करना है इस अमाउंट में कितने साइकिल्स आएंगे, राइट? तो फर्स्टली हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल. क्लियर? सो नाउ लेट्स सी हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन. यहाँ पे आपको सेकंड में भी क्या करना पड़ेगा? डिवाइड ही करना पड़ेगा. रीज़न बीइंग सेकंड का भी इन्होंने अमाउंट ही गिवन है, राइट? सो सेकंड क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 20 बाईसाइकिल इक्वल्स टू रुपीज़ 40,400. नाउ कॉस्ट ऑफ 1 cycle means rupees 40,400 divided by 20, right? So let's divide it. 20 2s are 40, zeros 4 come here, 4 आपका 2 से लेस है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 and you will take down 1 more 0. Again 20 2s are 40, this 0 left, so what come here? ये 0 यहाँ आ जाएगी. That is cost of 1 cycle is rupees 2020, right? Cost of 1 cycle equals to rupees 2020. Now you have to find that in rupees 24,240 how many bicycles come. सो देखो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया आपके लिए. इसमें क्या है, अमाउंट से हम अमाउंट को डिवाइड करेंगे. तो या तो आप यहाँ पे ये चेंज कर लीजिए. यू विल राइट हेयर फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 and 12 साइकिल्स, बिकॉज जो ये कॉस्ट है बेटा ये आपकी 12 साइकिल्स की है. ठीक है? देखो अगर हम ये करते हैं इन या कॉस्ट ऑफ इन रुपीज़ 24,240 साइकिल्स इक्वल्स टू, राइट? तो क्या करोगे आप, इसको इनसे डिवाइड करो तभी आपको नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स पता चलेंगे. डिवाइड बाय रुपीज़ 2020, क्योंकि ये जो 2020 है ये आपकी 1 बाईसाइकिल की कॉस्ट है. सो लेट्स डिवाइड इट, सो मच बिग अमाउंट. तो इट गोज़ ऑन 1 2020 4
2 minus 2 0 and 4. Take down this 0. 2 2 0 0, 2 4s are 4, 2 0 0 and 2 2s are 4. Right, so what come here? 12. So what you will write here? 12 bicycles, or you can write 12 cycles. क्लियर? तो इसमें जो है क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा आपका ये चेंज कर दिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे गिवन होता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 साइकिल्स, देन तो ये आप यहाँ क्या लिखोगे? इन ₹24,240 साइकिल्स इक्वल्स टू 12 साइकिल्स. कंप्लीट अमाउंट से हमने एक साइकिल की अमाउंट को डिवाइड कर दिया, राइट? तो हमारे पास क्या आएगा? नंबर ऑफ थिंग्स. जैसे आपके पास क्या है? 25 पेन्स है. क्लियर? या लगा लो आपके पास टोटल 250 रुपीज़ है और आपको पता है कि 1 पेन की जो कॉस्ट है वो 10 है. सो हाउ मैनी पेन कैन बी कम इन 250? 25 पेन्स, राइट? तो सेम हमने किया है बेटा. अगर आपको एक की क्वांटिटी कॉस्ट पता हो और रुपीज़ गिवन हो नेक्स्ट फ्यू थिंग्स के, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय द कॉस्ट ऑफ 1. टोटल अमाउंट को आप डिवाइड करेंगे 1 अमाउंट से. राइट दिस क्वेश्चन सेकेंड. कंफ्यूज नहीं होना है. ये भी आपका एक तरीका है कि अगर आपके पास टोटल अमाउंट है और 1 की कॉस्ट है तो आप नंबर ऑफ आइटम्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? So how many bicycle comes in 24,240? 12 bicycles. Clear this 12th question, second question. Now come to the third one. 5 kilogram of flour cost is ₹300. So what will be the cost of 13 kilogram flour? Now this is the right one, that we have to find the cost of 13 kilogram of flour. Third one is cost of 5 kilogram flour equals to rupees how much beta? 300. Now we have to find the cost of 1 kilogram flour. I hope everyone knows what is flour here. ₹300 divided by 5 and that is ₹60. राइट? अब आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 13 किलोग्राम. सो कॉस्ट ऑफ 13 kilogram flour equals to how much? What we will do? We will multiply this 13 with ₹60. So now multiply. 3 multiply with 0, 0. 3 6 are 18. Cross 1 multiply with 0, 0. 1 6 are 6. 7 18. So cost of 13 kilogram flour is ₹780. What is the cost of 13 kilogram flour? ₹780. Clear this question number third? Now come to the question number 4. A worker is paid ₹17,250 for 5 days. So what should he be paid for 16 days? Right? For how many days we have to find? 16 days. Now we will write it amount for 5 days. How much? ₹17,250. Now amount
for 1 day equals to rupees 17,250 divided by 5, right? Divide it. 5 3s are 15, 7 minus 5 2. Take down 2, 5 4s are 20. 2, take down 5, 5 5s are 25, right? Now only 1 0 left, so what come here? 0. So amount for 1 day is rupees 3,450. 1 day amount is rupees 3,450. Now we have to find amount for 16 days. How many days? 16 days. So what we will do? Rupees 3,450 multiply with 16. Now multiply 16. 6 0. 6 5s are 30. 3 goes carry. 6 4s are 24 and 3 27. 7 will come here and 2 will be here. 6 3s are 18, 19 and 20. क्रॉस अगर हम 1 की किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देन आंसर और प्रोडक्ट विल बी द सेम नंबर. 0 5 4 3. So 0 0. 7 plus 5 12. 1 goes carry. 4 plus 1 5. 2 plus 3 5. So amount for 16 days is rupees 55,200. Clear? What is the? So students, amount for 16 days is rupees 55,200. Clear this one? Now the fifth question is, a shopkeeper bought 28 packets of paper from wholesale shop. राइट, एक होलसेल की शॉप है बेटा, वहाँ से एक शॉपकीपर 28 पैकेट्स ऑफ पेपर्स लेता है. आउट ऑफ विच 8 पैक्स कॉस्ट रुपीज़ 2400. सो हाउ मच डज ही पे फॉर 28 पैक्स ऑफ पेपर, राइट? सो सिंपली यहाँ पे 8 पैक्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है? रुपीज़ 2400. सो नाउ लेट्स सी हाउ वी विल डू इट, राइट? सो यहाँ पे जो है बेटा, जस्ट सिंपल क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट ऑफ 8 पैक्स, हाउ मच? रुपीज़ 2400. नाउ cost of 1 pack, what will be? Rupees 2400 divided by 8, and here will come rupees 300, right beta? Now we have to find the cost of 28 packs. So what we will do? Rupees 300 multiply by 28. Now multiply and find the cost of 28 packs. So 8 multiply with 0 0. 8 multiply with 0 0. 8 3s are 24. Cross 2 0 0. 2 3s are 6. So what come here? 8400. So cost of 28 pack is 8400. Clear? This is about your exercise 12.4, in which you have to find the cost of 28 packs, and which is 8400. Clear this last question? So here your exercise is over. In this exercise, in which we have studied about unitary method,
only 5 questions are there. So after this method, our next topic is about the selling price, cost price, profit and loss. Right? इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे बेटा, वो क्या है आपका सेलिंग प्राइस, मीन्स जिस प्राइस पे आप किसी चीज़ को सेल करते हैं, बेचते हैं. कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे आप उस चीज़ को खरीदते हैं. राइट? एंड प्रॉफिट एंड लॉस. सो देखो यहाँ पे गिवन है आपकी बुक में CP इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है CP. द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट, मीन्स जिस प्राइस पे कोई चीज़ जो है वो खरीदी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. SP इज सेलिंग प्राइस. द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिस पे कोई भी आर्टिकल या जो सामान है वो आपका सॉल्व किया जाता है, बेचा जाता है. राइट? सो नाउ व्हेन SP इज़ ग्रेटर एंड CP इज़ लेस, मीन्स आपने किसी चीज़ को ख़रीदा कम में है, लेकिन उसको जो सेल किया है, जब उसको बेचा है तब आपने ज़्यादा अमाउंट में बेचा है, तो आपको क्या होगा प्रॉफिट. राइट? व्हेन SP इज़ ग्रेटर देन CP देन प्रॉफिट. और प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है आपका SP माइनस CP. आप जो सेलिंग प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने उस आर्टिकल, उस आइटम को सेल किया है, उस प्राइस में से आप जिस प्राइस पे आपने वो ख़रीदा है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, SP माइनस CP. उसके बाद इफ़ SP कम है, मीन्स आप किसी चीज़ को जो कॉस्ट प्राइस है उससे कम में सेल कर रहे हैं. राइट? तो वहाँ पे क्या होगा आपको लॉस होगा. एंड लॉस के लिए फार्मूला क्या होता है CP माइनस SP. क्लियर? सो फर्स्टली टुडे वी हैव टू जस्ट डिस्कस अबाउट दिस. कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका, जिस पे हम किसी सामान को जो है खरीदते हैं. सेलिंग प्राइस होता है जिस प्राइस पे आप उस सामान को बेचते हैं बेटा. प्रॉफिट कब होता है आपको, जब देखो मैंने ये मार्कर 10 रुपीज़ में ख़रीदा और सामने वाले को मैं इसको 15 में सेल कर रही हूँ. इट मीन्स मुझे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ 5 का. और वो कैसे फाइंड आउट किया मैंने, 15 क्या था सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या था 10. 15 माइनस 10 5. क्लियर? सो वो जो 5 है वो क्या हो गया प्रॉफिट हो गया. अगर मैं इसको 15 का ख़रीदती हूँ और 10 का सेल करती हूँ तो इट मीन्स मुझे क्या हुआ है लॉस. और उस लॉस को मैंने कैसे फाइंड आउट किया है CP, जो मेरा कॉस्ट प्राइस था, माइनस जिस प्राइस पे मैंने इसको सेल किया. राइट? सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.5. फाइंड द प्रॉफिट, फाइंड द लॉस. तो प्रॉफिट के लिए देखो यहाँ पे फर्स्ट में गिवन है CP स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस, SP स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस आपका 20,000 है एंड सेलिंग प्राइस 22,500. सो विच वन इज़ मोर, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो आपको क्या हुआ है प्रॉफिट. अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ मोर देन लॉस. क्लियर दिस? उसके बाद फाइंड सेलिंग प्राइस फॉर ईच. अगर आपको प्रॉफिट गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है तो आप क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के साथ. और अगर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है और सेलिंग प्राइस गिवन है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. क्लियर? एंड उसके बाद आता है अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है लॉस के साथ तो आप क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. एंड अगर आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो लॉस प्लस सेलिंग प्राइस. सी फर्स्टली यू विल लर्न दीज फार्मूलाज. टुमारो वी विल स्टडी दीज फार्मूलाज इन डिटेल, दैट व्हाट इज CP SP. आज भी मैंने आपको कुछ बताया है, सो यू विल लर्न अबाउट दिस एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस. आफ्टर दैट मोर इन डिटेल वी विल डिस्कस अबाउट दिस टुमारो.
and here are the 7 questions of this exercise. This we will do in the next lecture. If anyone having problem, you can comment and ask about exercise 12.4, which is of unitary method.